Hello everyone. In this video, we are going to discuss one mains question which was asked in the previous year UPSC mains examination. Okay, so previous year questions, why are we supposed to do it? So if you are preparing for civil service examination, irrespective of the fact that whatever mains optional you have chosen, you have to go through the previous year questions at least once. The reason is बिकॉज यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं दे गाइड यू अलॉट, दे गिव यू बेसिकली अ डायरेक्शन दैट हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन योर क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चंस, एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू आंसर. फॉर दैट टू हैपन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. दैट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से होनी चाहिए. चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पिक करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टेकिंग इज व्हाट साइकोलॉजिकल टेक्निक कैन बी यूज्ड टू एनहांस क्लीनिनेस इन पब्लिक प्लेसेस. Now this question was asked in the year 2014 and it is an application based question. Application based questions are quite common in UPSC examination. Further, while you're writing the answers, you are also supposed to draw the diagrams. I'll tell you the techniques, the tips and the tricks of the trade when we will be discussing or when you will be coming to the courses, because I'll tell you how to actually answer or write a fantastic answer along with diagrams as well as real life examples, because these examples will connect with the evaluator. These diagrams will make your answer more appealing so that you could get more marks in this particular paper. Okay, so you are not just supposed to write the answer as you used to write in the school or the college, but you are supposed to make diagrams, the relevant diagrams which are more relevant to the question, and you are also supposed to write real life examples which will connect with you, other people, as well as the person who is going to check your copy. Okay, now let's try to understand the question. For that you have to bifurcate the question. What psychological techniques? So they are specifically asking about psychological techniques, means they don't want any kind of general answer from your side, they want a psychological answer. So you have to write certain techniques which belong to the field of psychology, and you also need to apply them in the area of cleanliness. You understand this thing that the Swachh Bharat Abhiyan is going on, and present government is focusing a lot on this particular area, and that's why in 2014 mains examination, which happened basically in 2015, this question was asked because the Swachh Bharat was famous during that time. तो स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री भी काफी बात कर रहे थे, and that's why this question was asked. And believe me, even in the coming years such kind of questions will be there, because these are the application based questions. You are going to be the civil servant, and they means UPSC wants to know, can you provide the solution for such problems or you are just cramming the facts. Okay, so यहाँ पर स्वच्छ भारत को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे हम अपने पब्लिक प्लेसेस को साफ रख सकते हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए. एज अ सिविल सर्वेंट आप जब पोस्टिंग पे जाएंगे, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू डू सो दैट यू कुड एक्चुअली एंश्योर द क्लीनलीनेस इन द पब्लिक प्लेसेस. डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो कैसे एंश्योर करोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्लीन रहे. तो ये सब चीजें आप अपनी जो नॉलेज है, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से जा रहे हो, आप सोशियोलॉजी से जा रहे हो, साइकोलॉजी से जा रहे हो, इंजीनियरिंग से जा रहे हो, वो नॉलेज क्या आप यूज कर पाएंगे या नहीं, वो ये चीज, ये क्वेश्चन जो है ये चीज जानना चाहता है. कैन यू एक्चुअली अप्लाई द नॉलेज यू हैव, और दिस इज मेयरली द बंच ऑफ नॉलेज, बंच ऑफ फैक्ट्स विच आर देयर इन योर ब्रेन. ओके, सो यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस के अंदर क्लीनिनेस को बनाए रखने के लिए यू आर सपोज टू राइट सर्टेन साइकोलॉजिकल टेक्निक. सो यू ऑलवेज नीड टू डाइसेक्ट द क्वेश्चन. अदरवाइज क्या होता है, क्वेश्चंस कई बार थोड़े से बड़े होते हैं एंड समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम. देयरफॉर डाइसेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो है वो यूज कर सकते हैं. पहली टेक्निक जो है वो यूज करेंगे हम एमुलेशन. सो एमुलेशन में आई विल ऑल्सो गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ माई ऑफिस दैट व्हाट वी एक्चुअली डिड एंड हाउ इट हेल्प द एंटायर ऑफिस सो दैट इट कुड स्टे क्लीन. ठीक है, तो मैं आपको अपने ऑफिस का एग्जाम्पल जो है वो देने वाला हूँ. आई वॉज पोस्टेड एट पंजाब, और वहां पर हमने क्या किया जिसकी वजह से इस तरीके से क्लीनिनेस जो थी वो देखने को मिली. बट हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है, ही हिमसेल्फ इज क्लीनिंग द फ्लोर.
ओके तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो खुद ही यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, विच शोज प्राइम मिनिस्टर इन अ वे सेइंग दैट इफ आई कैन क्लीन यू कैन क्लीन टू। और क्लीननेस जो है वो किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, किसी एक जनजाति का काम तो है नहीं, किसी एक तबके का काम तो है नहीं, किसी एक प्रोफेशन का काम तो है नहीं। इट हैज टू बी डन बाय ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज देश तो हमारा ही है ना। पब्लिक प्लेसेस किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है। द पब्लिक प्लेसेस बिलोंग टू पब्लिक एंड यू, मी, प्राइम मिनिस्टर और मे बी एनी अदर पर्सन, वी ऑल बिलोंग टू सोसाइटी। ठीक है, सो हमने भी अपने ऑफिस में क्या किया था, सो दिस वाज द प्रैक्टिस दैट ऑन द स्वच्छ भारत डे। स्वच्छ भारत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से बताएं, कब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं स्वच्छ भारत डे को, बताइए। यस एग्जैक्टली 2 October, and it all started from 2014. So 2 October 2014, that is birth anniversary or Gandhi Jayanti, birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. On this particular day, because Gandhi ji, the entire idea of Swachh Bharat is actually influenced or motivated by Gandhi ji. Okay, so 2 October is celebrated or observed as the Swachh Bharat Day, and this was the day we did not, even though yes there was a holiday on that day, but we used to call the entire staff, we used to call all the officers and everybody, irrespective whether it is a person from the staff, it is a person from the officer, right from top to bottom, we used to clean our office premises. Okay, so it was not like only few people, the people who have been designated with this task, only they will clean the floor, only they will clean the office. No, everybody was trying to set the example that everybody, right from the group D to group A, everybody from the staff level to the officer level, everyone was cleaning office premises on that day. तो उस दिन में क्या होगा, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे, मिलकर पूरे ऑफिस को साफ करेंगे टू सेट एन एग्जाम्पल कि जो सफाई है वो हर किसी के लिए जरूरी है, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, एवरीवन शुड बिकम द पार्ट ऑफ इट। अब ये एमुलेशन क्या है, सो दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक जो कि यूज करी जा सकती है और जो कि हमने करी भी सही। उससे क्या होता है, बेसिकली एक सेल्फ अवेयरनेस जो है वो तो जनरेट होती ही है इसके अंदर ये रियलाइजेशन होता है बाकी के लोगों को भी कि अगर प्राइम मिनिस्टर जैसा व्यक्ति सफाई कर सकता है, जो ब्रूमस्टिक होती है उसको अपने हाथ में ले सकता है, सो हमें इस चीज में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। ओके, सो इट इज बेसिकली लीडिंग बाय एग्जांपल, जो कि साइकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर आर सर्टन पीपल हु मे हैव द मेंटल ब्लॉक, जो कि इस तरीके से काम शायद ना करना चाहें, बट अगर उनसे भी सीनियर व्यक्ति कुछ ऐसा करता है तो डेफिनेटली जो नीचे के लोग होते हैं उनको एक अच्छा एग्जाम्पल जाता है कि दैट जो क्लीनिनेस है वो सभी के लिए जरूरी है और इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, जैसे कि गांधी जी ने कहा था। ओके, so emulation is the technique which actually make other people understand, yes, this is something which everyone else is doing, so you are also supposed to do it because this is the task of the entire public. ये सभी लोगों का काम है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, so this was the first technique जो कि आप यूज कर सकते हैं, that is emulation, जिसमें what would you do, you will set the example for the people so that they could also do this job. चलिए, let's move to the next important technique in which we are going to study about the operant conditioning. Now, operant conditioning, if you are from the psychological background, you must have heard about it. What is operant conditioning? Even if you're not, there's nothing to worry because it's a very small and very simple concept which I'm going to explain to you in just 1 minute, and then you will realize that okay, this technique can also be utilized in this area. Operant conditioning. What is operant conditioning? Operant conditioning, there's another name for this, which is called instrument. Why am I telling you another name? Not to complicate the topic, but to make it easier. Instrument conditioning. Instrument conditioning means that your action will be instrument to the rewards or punishment you get. तो आपके जो एक्शंस होने वाले हैं उसी के बेसिस पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट आएगा। रिमेंबर द डेज जब हम क्लास में जाया करते थे, व्हेन वी यूज्ड टू परफॉर्म वेरी गुड इन द टेस्ट, जो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे या फिर अदरवाइज जो भी हमारे मिड टर्म हुआ करते थे और हम उसमें अच्छा परफॉर्म करते थे। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब हम अच्छा परफॉर्म करते थे, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हुआ करती थी, देन पेरेंट्स भी हमें रिवॉर्ड करते थे और टीचर्स भी हमें रिवॉर्ड करती थी और स्कूल्स भी हमें रिवॉर्ड करते थे। और जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुआ करती थी, यू कैन रियलाइज दोस पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, तो उसमें कितना रिब्यूक जो है वो सुनना पड़ता था। दे यूज्ड टू बी टीचर्स हु वुड जस्ट कॉल योर पेरेंट्स एंड दे विल से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक थिंग व्हिच इज हैपनिंग हियर,
basically your actions are determining whether you are going to get the rewards or whether you are going to get the punishment. तो आपके जो actions है वो determine करते हैं, they are instrument basically to ensure कि आपको reward मिलेगा या punishment मिलेगी. चलिए मैं आपको एक example और देता हूँ यूपीएससी से जोड़ के, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आए. चलिए for example let me make some space here. You are preparing, you have actually enrolled in this class and you are practicing and watching the videos every day. So आप क्या कर रहे हैं? You're watching the lectures every day. Whatever assignments I'm giving to you, you're doing that every day. Okay, so you are doing the lectures every day, assignments are performed every day, and even the tests which I'm taking in between, you are also attempting those tests. I'm giving you the feedback whenever you're doing good or bad, and you are working on that feedback as well. तो मैं आपको lectures दे रहा हूँ, आप अच्छे से कर रहे हैं, assignment को अच्छे से कर रहे हैं, test को भी आप अच्छे से कर रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, जब आप डेली बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे आप इस तरीके से चीजें करते जाते हैं, दैट यू स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. इवेंचुअली क्या होगा, आफ्टर 1 year व्हेन योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड एंड योर एंटायर साइकोलॉजी as an option will be strengthened, you will be able to write good answers. When the exam, mains exam happens, then you will be able to score 300 plus in that, or maybe even 350 plus. Okay, so you will be able to score 300 350 plus in that particular exam, and then selection will happen. So basically what is happening here, you can see कि आपके जो actions है, because of your actions the consequences you are getting are the ones which you actually desire. Imagine करें there is another student, he is not regular. Okay, so he is not taking the lecture every day, he is not doing the assignments every day, he is not attempting the test every day. Whatever things are provided to him or her, he or she is not doing that. Okay, so do you think the actions are in line with the consequences he desires or she desires? Answer is no. तो क्या होगा, action जब नहीं है तो उसके concerning consequences भी favorable नहीं होने वाले हैं. ठीक है, your results were favorable because your actions were in a certain direction. उनके consequences अलग होंगे because जब merit list निकलेगी आपका नाम वहां पर होगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा. Reason is why, क्योंकि आपको क्या मिला, आपको रिवॉर्ड मिला आपके एक्शंस की वजह से, जो चीज आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही थी. द अदर पर्सन डिड नॉट गेट इट बिकॉज हिज एक्शंस वर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, देयरफॉर ही वाज पेनलाइज्ड. हाउ ही वाज पेनलाइज्ड? बिकॉज हिज नेम वाज नॉट देयर इन द फाइनल लिस्ट. फाइनल लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था. सो दिस इज व्हाट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके एक्शन के. अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं, रिवॉर्ड दिया जाता है. आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो वहां पर पनिशमेंट दी जाती है. चलिए, सो आई ऑलवेज से दैट साइकोलॉजी इज ऑल अराउंड यू. ओके, सो इन योर सराउंडिंग्स, इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, इवन इफ यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर, you can always become a good observer. You will find numerous examples of psychology which you can use in your answers, because bookish example nobody likes. So that's why I'll also tell you the art of developing your own examples, the real life examples which will fetch you more marks in the mains examination. क्योंकि mains examination के अंदर रटे रटाए जो आंसर आपसे पहले के 20 या 30 स्टूडेंट ने लिखे हैं वही आप लिखेंगे जो बुक्स में होते हैं. you will not get good marks. But yes, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आर्ट को डेवलप करना है ताकि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख सकें, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स जो होती है उसको समझ के, तो आपको यहां पर बेहतर मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज आई डिड द सेम थिंग. मैंने कोई बुक्स के एग्जाम्पल नहीं लिखे, बट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है उस चीज को समझना शुरू किया. और फिर आंसर्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप अपने आप ही वहीं पे ही बना लेते हैं. जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको कोई एग्जाम्पल्स जो है वो रट के जाने की जरूरत नहीं होती है. चलिए, और मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि करंट अफेयर्स जो होता है वो आपको बहुत बेहतर मटेरियल देता है टू एक्चुअली फ्रेम द गुड एग्जाम्पल्स, बिकॉज देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन करंट अफेयर्स also which you can use for your exam or which you can use for the mains answer. चलिए, आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना होगा, राइट? जैसे कि हमारा पूरा क्वेश्चन ही उसी के अराउंड डेवलप किया गया है. तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर देयर इज अ सिटी इंदौर. इंदौर सिटी जो है इट इज बीइंग द टॉपर ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे कराया जाता है, इंदौर इज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट टॉपर राइट फ्रॉम 2017 टू 2020. ठीक है, तो यहां पे 2017 से लेकर 2020 तक कंसिस्टेंट बेसिस पे व्हाट इंदौर इज डूइंग, इंदौर इज द टॉपर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वच्छ सर्वेक्षण कॉम्पिटिशन.
इस कंपटीशन के कौन है? इस कंपटीशन की आपकी यहां पर टॉपर सिटी जो है वो इंदौर है। किस तरीके से? देखिए, इंदौर ने जब 2017 में टॉप किया तो एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग इंदौर, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे उनको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, प्राइम मिनिस्टर से भी, प्रेसिडेंट से भी, इवन फ्रॉम द एंटायर कंट्री एज वेल एज सम ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। तो इंदौर और इंदौर के लोगों को क्या लगा कि हमने जो एफर्ट्स करे हैं जिसकी वजह से 2017 में हमें नंबर 1 सबसे क्लीन सिटी के तौर पे चूज किया गया है, व्हाई नॉट टू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, 2018 के अंदर और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, उनको और ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, 2019 में और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और 2020 में और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और अपना फर्स्ट रैंक जो था उसे मेंटेन रखा। आपने देखा होगा कई बार क्लास के जो टॉपर्स होते हैं दे डोंट चेंज वेरी इजीली, मींस कि जो व्यक्ति 5th क्लास में टॉप कर रहा है वही 7th में भी कर रहा है, वही 9th में भी कर रहा है, आगे जाके 11th 12th में भी वही व्यक्ति टॉप कर रहा है। रीजन उसका ये हो जाता है क्योंकि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आई विल टेल यू विद इन अ मिनट। बट हाँ, वहां पर ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो काम कर रही होती है, मींस जो एक्शंस होते हैं, द एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल दे फेच अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मींस द अप्रिसिएशन जो उनको फर्दर मोटिवेट करता है उस तरीके से एक्ट करने के लिए, जो कि इंदौर के लोगों ने यहां पे करके दिखाया। व्हाई एम आई टेलिंग यू द एग्जांपल ऑफ इंदौर? क्योंकि जब बच्चे यहां पर आपके जो कंपेटिटर्स होंगे दे विल बी थिंकिंग कि क्या एग्जाम्पल लिखना है और दे मे बी राइटिंग सम बुकिश एग्जाम्पल। यू आर सपोज टू राइट अ करंट अफेयर एग्जाम्पल दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड आई कैन एश्योर यू आपके तो रूम में किसी ने भी इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा एंड दैट विल मेक योर कॉपी, दैट विल मेक योर आंसर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पर्संस। और वहीं पे ही जो कॉपी चेकर होंगे उनको ये रियलाइज हो जाएगा दैट दिस पर्सन इज नॉट मेयरली क्रैमिंग द साइकोलॉजी, दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड द साइकोलॉजी और ये इन्हें अच्छे से अप्लाई करके जो आंसर है वो लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी आंसर कॉपी को डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों से। क्या यहां पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है व्हेन यू डू एन एक्शन एंड you are positively rewarded for that action। आपने कोई काम किया और आपको उसके लिए पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर भी लबासना के अंदर हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और अक्टूबर 2 का जो दिन था वो भी अक्टूबर 2 जो दिन था हमारा वो ट्रेनिंग के दौरान ही पड़ता था, बिकॉज सितंबर में वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग एंड इट वाज एंडेड इन नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास हमारा जो फाउंडेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अक्टूबर 2 जो था वो भी इस दिन पे पढ़ रहा था, इसी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ रहा था। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू वहां पर क्या एग्जांपल दिया गया मैं आपको बताता हूं। सो अक्टूबर 2 द एंटायर कैंपस वाज क्लीन्ड बाय whom? The entire campus was cleaned by the officer students. Okay, so we were the officers trainee and we were cleaning the entire campus. Even the faculty was supporting us there. ठीक है, faculty कौन थी? Faculty were also very senior civil servants. They were supporting us. We were cleaning the entire campus there. ओके तो यहां पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद that entire day उन्होंने कहा कि हम आपको आज और भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कराएंगे, मीन्स देयर विल बी नो पीटी, देयर विल बी नो अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इनफ। दिस क्लीनिनेस एक्सरसाइज वाज फॉलोड बाय अ वेरी लग्जूरियस लंच। ओके सो हुआ क्या, हमारा एक एक्शन था, हमने एक एक्शन किया, दैट वाज फॉलोड बाय एक्शन क्या था? क्लीनिनेस का एक्शन। देखिए हमने क्या किया, हमने पूरा जो कैंपस है उसे क्लीन किया। यहां पे इसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड कैसे किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा? एक बहुत अच्छा लंच देकर और जो एक्सरसाइज उस दिन करनी थी उसको रिमूव करके और हमें अप्रिशिएट करके, ठीक है। सो यू कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज और वेरी पॉजिटिव कि हमें एक अच्छा लंच खाने को मिला, हमें एक्सरसाइज जो कि उस दिन नहीं करनी पड़ी और उसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज जो है इसको काफी सारे लोग पसंद नहीं करते थे, उन्होंने यहाँ पे क्लीनिनेस करते हुए इतनी सारी एक्सरसाइज हो गई थी, वैसे भी हमारे पास उतनी एनर्जी बची नहीं थी एंड इट वाज आल्सो फॉलोड बाय लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कि जो काम हमने करके दिखाया है वो काफी ज्यादा वहां पर फैकल्टी को, मैनेजमेंट को काफी ज्यादा पसंद आया, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे एक्शन को पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया जा रहा है एंड दिस इज समथिंग वी कैन डू फॉर द पीपल एज वेल। अगर आप चाहते हैं यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपके लोग जो हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो अच्छे से डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो वी कैन एक्चुअली रिवॉर्ड
people positively so that we could ensure that in future also such kind of behavior will be manifested. फ्यूचर के अंदर भी वो इस तरीके का जो बिहेवियर होगा वो करेंगे, मींस अपनी सिटी को क्लीन करेंगे. और ये जो पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू गिव दैट इन काइंड. ये हमेशा कैश और काइंड में ही होना चाहिए. यू कैन जस्ट अप्रिशिएट द पीपल ऑफ योर सिटी, यू कैन जस्ट अप्रिशिएट द पीपल एंड देन दे विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर विच दे आर रिवॉर्डेड और फॉर विच दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड अगेन एंड अगेन. ठीक है, यही चीज हमने लबासना में भी करी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, जिसके बाद हमने इंश्योर किया कि हम अपने जो रूम्स होते हैं उनको भी क्लीन रखेंगे और अदरवाइज कैंपस को भी हम क्लीन रखेंगे. ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आई रिमेंबर इट वाज 2011. आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम नोएडा बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे देयर टू Rajendra Nagar. I was actually going to my coaching institution. Okay, so what happened during this journey when I was about to board the train? Before that journey, rather, when I was about to board the train, there was this guy who spit on the track. Okay, so वो क्या करते हैं, वो जो आपका ट्रैक होता है जहाँ पे ट्रेन चलती है वहां पर थूक देते हैं. यहाँ पे जैसे ही वो ऐसा करते हैं, एक इमीडिएटली जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आते हैं और उनको आकर डांटना शुरू कर देते हैं और उनको ये भी कहते हैं that there is a fine of 200. आई एम नॉट टेकिंग द फाइन बट दिस इज अ फाइनल वार्निंग फॉर यू. अगर आप ऐसा करते हुए दोबारा पाए जाओगे तो आपसे 200 रुपए का फाइन भी लिया जाएगा. और पब्लिकली क्या किया जाता है? पब्लिकली उनको बहुत ज्यादा डांटा जाता है. ठीक है, नाउ दिस इज अ रियल इंसिडेंस जो मैं आपको बता रहा हूं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. यहां पे क्या किया गया? यहां पे व्यक्ति के एक्शन की वजह से, व्यक्ति ने कुछ किया, मान लीजिए उनका नाम है मिस्टर एक्स. ठीक है, उनका नाम मिस्टर एक्स था. उन्होंने ऐसा एक एक्शन किया दैट फेच्ड लॉट ऑफ रिब्यूक बाय सिक्योरिटी पर्सनल. जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने बहुत ज्यादा उनको डांटा. ठीक है, सो मींस एक्शन जो है उसकी वजह से क्या किया जा रहा है? उनको पीनलाइज किया जा रहा है. और हो सकता है नेक्स्ट टाइम उन्होंने वैसा किया हो तो 200 रुपए का फाइन उनके ऊपर लग भी जाए. ये भी एक एक्स्ट्रा पेनल्टी है. सो विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि किसी को डांटना, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको डांटा जाए. अगर किसी व्यक्ति को डांटा जा रहा है, इवन दैट इज अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी. सो हियर दिस रिब्यूक और दिस पर्टिकुलर फाइन could act as a penalty for the individual, ताकि फ्यूचर में वो उस एक्शन को ना करे. और आपने देखा भी होगा कि लोग रेलवे स्टेशन जो होते हैं उनको तो बहुत गंदा करके रखते हैं, लेकिन एयरपोर्ट और मेट्रो को गंदा नहीं करते हैं. रीजन इज बिकॉज दे नो, दे अंडरस्टैंड दैट अगर वो ऐसा मेट्रो स्टेशन के ऊपर करेंगे या फिर एयरपोर्ट के ऊपर करेंगे तो वहां पर पेनल्टी का प्रोविजन है. रेलवे में मे भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इस वजह से लोग वहां पर काफी ज्यादा लिटरिंग जो है करते रहते हैं, काफी ज्यादा गंदा उसे करते रहते हैं. तो यहां पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है when for a particular action you provide any kind of penalty. ओके, सो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अगर वो ऐसा गलत काम करेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, एरिया को गंदा करेंगे, लिटरिंग करेंगे, देन देयर माइट बी सम काइंड ऑफ पेनल्टी, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ रिब्यूक फ्रॉम द साइड ऑफ द अदर पर्सन. तो यहां पे उनको क्या देखना पड़ सकता है? उनको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं. सो इट इज बेटर टू क्लीन द प्रेमिसेस. ये अच्छा रहेगा कि अगर कोई रैपर उनके हाथ में है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट ऑन द ट्रैक्स, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द प्रेमिसेस, वो अपने बैग में उसे रख लें अगर आसपास डस्टबिन अवेलेबल नहीं है. एंड व्हेन द डस्टबिन इज अवेलेबल और व्हेन दे रीच देयर होम, दे कैन जस्ट डिस्पोज दैट रैपर इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, तो यहां पर दिस इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा? यहां पर मैं आपको रिवाइज कराता हूं जल्दी से. हमने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स देखी कुछ, जिससे क्लीनिनेस जो होता है उसे बढ़ाया जा सकता है पब्लिक प्लेसेस के अंदर. दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज डू रिमेंबर दैट. और यहां पर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, डायग्राम्स, रियल लाइफ एग्जांपल कैसे देने हैं, वो मैंने आपको यहां पर बताया. लेकिन हाँ, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप इसको और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं. मैं आपको अपने आंसर्स जो है वो भी दिखाऊंगा, डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है, रियल लाइफ एग्जांपल कहां पर किस तरीके का दे सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है लिखना, बॉडी कैसे लिखनी है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर्स. ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू सो दैट यू कुड राइट अ फैंटास्टिक आंसर जो दूसरा कोई भी स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा. दैट्स व्हाई your answer copy will be completely different and will fetch you the maximum marks, even more than 350 plus. चलिए, फिर हमने एमुलेशन के बारे में देखा दैट यू हैव टू सेट द एग्जांपल लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग हियर. यू कैन आल्सो सेट दीज एग्जांपल्स इन योर ऑफिसेस सो दैट पीपल कुड लर्न फ्रॉम यू, your juniors could learn from you, and then they should get an idea that there is nothing wrong in the cleanliness. सफाई करने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो जाता है. ठीक है, तो यहां पर आपको एमुलेशन की जो टेक्निक है उसे यूज करना है ताकि लोग इस चीज को समझ सकें और सफाई रख सकें.
ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा, मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज. इफ द एक्शंस फेच पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, दैट मीन्स they fetch rewards, then chances are likely in future those actions will be repeated. अगर जो actions होते हैं उनके ऊपर penalize किया जाता है, उनको फ्यूचर में वो actions नहीं किए जाते. इंदौर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक बार अवार्ड मिला तो इनको आदत हो गई कि नहीं, हमें और भी बेहतर परफॉर्म करना है. इन द फ्यूचर years they performed even better and that's why जो टॉपर का खिताब था वो इन्होंने मेंटेन करके रखा. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में मैंने आपको लबासना का अपना एग्जांपल दिया, जिसमें जब भी आपको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है किसी एक्शन के लिए, द लाइकलीहुड ऑफ रिपीटिंग दैट एक्शन दैट बिकम्स इवन मोर. जैसे कि हमने पूरे कैंपस को साफ किया तो हमें क्या दिया गया, हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी अच्छा लंच दिया गया और वहाँ पर उस दिन जो आपकी एक्सरसाइज होती है उससे भी छुट्टी हमें दे दी गई. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, मैंने आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया. तो मेट्रो में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे, लिटरिंग कर रहे थे. तो सिक्योरिटी पर्सनल आए, उन्होंने नोटिस किया इस चीज को और उसके बाद उस व्यक्ति को काफी ज्यादा लोगों के सामने डांटना शुरू कर दिया कि व्हाई आर यू स्पिटिंग ऑन द ट्रैक, कांट यू रीड कि यहाँ पर खाना खाना, थूकना, गंदगी फैलाना, लिटरिंग करना, इट इज नॉट अलाउड. यू विल बी पीनलाइज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. दिस टाइम आई एम जस्ट मेकिंग एन एक्सेप्शन. ठीक है, दिस टाइम आई एम एग्जेम्प्टिंग यू, नेक्स्ट टाइम इट वॉन्ट हैपन. ओके, तो यहां पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, यू पेनलाइज द पर्सन ताकि उस एक्शन को रोका जाए. देखिए दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, एक्शन को बढ़ाना है. एक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप रिवॉर्ड देते हैं. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है तो उस एक्शन को बढ़ाना है. वी हैव टू एंश्योर दैट दिस एक्शन विल और दिस एक्शन शुड हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, सो वी गिव देम द रिवॉर्ड. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाता है, गलत एक्शन को कम करना है. अगर कोई व्यक्ति लिटरिंग फैला रहा है या लिटरिंग कर रहा है, देन वी हैव टू पीनलाइज दैट पर्सन ताकि फ्यूचर के अंदर ये एक्शन जो है वो कम किया जाए. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग विच यू कैन अप्लाई हियर, ताकि हम अपनी जो सराउंडिंग्स होती है उनको क्लीन रख पाए, उनको यहां पर बेहतर तरीके से रख पाए. आई होप आपने इस क्वेश्चन के आंसर को एंजॉय किया होगा. एंड अभी इस तरीके का कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड या अदरवाइज कोई क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट properly. The reason is why I opted for this question because usually students की ये एक रिक्वेस्ट होती है कि सर दूसरे क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिसमें खुद ही बता देता है यूपीएससी की आप इस टेक्निक के बारे में लिखिए, उस टेक्निक के बारे में लिखिए, वो लिखना तो काफी इजी होता है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. अगर आपसे यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पूछा होता और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एमुलेशन के बारे में पूछा होता, दीज क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी टू आंसर. बट सच काइंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट कि आपको लिखना क्या है और फिर आपको उस चीज के बारे में लिखना होता है. तो यहाँ पे दो टास्क आपके होते हैं. पहले तो आप देखिए कि लिखना क्या है, किस टेक्निक्स के बारे में लिखना है वो आपको चूज करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और करंट कॉन्सेप्ट दैट इज क्लीनिनेस इन पब्लिक प्लेसेस को साथ उसे कनेक्ट भी करके दिखाना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं इसके नीचे ही होते हैं, इससे ईजी ही होते हैं. कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, वो आंसर करना काफी ईजी होता है. अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना सीख जाते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर क्वाइट इजीली. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. गुड बाय.